दुर्गापुर गैंगरेप केस और ममता बनर्जी के शर्मनाक बयान पर भड़की रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर डॉक्टर अग्निदीपाल दास। अग्निदीपाल दास ने कहा, देर रात घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। पीड़िता के पिता ने ममता सरकार पर बोला जोरदार हमला। वो जो ममता दीदी है वो भी तो किसी का माँ होगा ना, अगर माँ होगा तो उसका लड़के का दर्द भी समझ सकते हैं ना। बंगाल सरकार के अनुरोध करता हूँ, उसी से कड़ा सजा दीजिए। वकीलों ने कहा, नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल स्टूडेंट के साथ गैंगरेप की घटना पर देश भर में गुस्सा है, तो वहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लड़कियों को लेकर के बेहद शर्मनाक बयान दिया है, तो इस पूरे मामले ने राजनीतिक घमासान का मोड़ ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के अब रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर ने भी ममता बनर्जी की क्लास लगाई और उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस हिसाब से राज्य में इतनी बड़ी घटना हुई है इसकी वो निंदा करती है और साथ ही उन्होंने ममता सरकार से ये कहा है कि देर रात घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर डॉक्टर अग्निदीपा दास ने कहा। See, Madam Chief Minister is a Chief Minister. She herself is going out after 10 p.m. She has her security. Right. So when a woman who is working, who is much, not having the facilities of that kind of safety, they should be made to feel more secure in this environment. This is what I feel. It's not about if they should, it is not about if they need to, It's like if duty calls, they have to go. If I want to go out at 10 p.m. for some work, suppose I am going somewhere for something which is personal. That is also not wrong. I should have a safe environment so that I don't have to worry about these things. See, on a personal level, a woman is carrying, we are keeping ourselves safe. We are carrying, now people are carrying pepper sprays, people are carrying tasers for personal safety. But then what happens? What happens in the bigger picture? That is, that should be given by the system. I cannot control that. So any woman who is going out after 10 p.m., should be made to feel more safe. Yeah. So I also feel that anybody who is committing crimes like this, they should know about the consequences. If the system is going to take appropriate measures, if the police, if the the judiciary, they take proper measures where people who know that if they follow or do some crime like this, or they are helping in crime like this, it is going to have dire consequences. You cannot you need to educate the society. You need to give them an idea of what can be the consequences. They can go to jail, some sort of punishment that will have repercussions. These things are mandatory. If people don't have that thing in their mind, they are going to go rampant, because last year we had the RGKR issue, this time we had the IQ City, in between we had a couple of similar cases. Law College was there was a few other in West Bengal as well. So I think that women should be made safe, and we are already keeping ourselves safe, but men or people who are helping or aiding things like this, they should have a clear knowledge, a clear proper awareness should be made, so that we know that if you are doing this, this is the consequence. There is no turning back from it. So people should fear that such things are wrong and you should not do it. You should not invade the personal space of a woman. वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के पीड़िता के पिता का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने ममता सरकार से ये मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले दिनों ये बयान दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि लड़कियों को देर रात कॉलेज से बाहर नहीं जाने दिया जाना चाहिए, उन्हें खुद भी सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यह घटना रात 12:30 बजे हुई है, जबकि पुलिस के मुताबिक यह घटना
शाम के 8 बजे के आसपास हुई थी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 23 वर्षीय मेडिकल छात्रा से गैंगरेप के मामले ने पूरे राज्य और देश को झकझोर के रख दिया है। गैंगरेप के इस मामले में पुलिस ने अबू बावरी, फिरदौस शेख, शेख रियाजुद्दीन और सादिक समेत सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह रही कि आरोपी सादिक की बड़ी बहन ने शुक्रवार को पुलिस को अपने फरार भाई का पता लगाने और सोमवार तड़के उसे गिरफ्तार करने में काफी हद तक मदद भी की है। रोजीना एसके ने कहा कि वो चाहती है कि उसका भाई सादिक एसके कानून का सामना करे। दरअसल पुलिस टीम के साथ दुर्गापुर के अंडाल पुल के नीचे उस जगह पहुंची जहां उसका भाई उससे मिलने आया था और जिसके बाद पुलिस ने उसे घेर करके गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, वहीं जब आरोपियों को दुर्गापुर न्यायिक मैजिस्ट्रेट राजीव सरकार की अदालत में पेश किया गया, जहां पर वकीलों ने तमाम आरोपियों का केस लड़ने से ही इनकार कर दिया। दरअसल दुर्गापुर बार एसोसिएशन ने यह फैसला किया कि उसका कोई भी सदस्य इन आरोपियों की ओर से पेश नहीं होगा। तो वहीं दूसरी ओर पीड़िता के पिता का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को इस दर्द को समझना चाहिए। मैं बंगाल सरकार से सख्त सजा देने की मांग उन आरोपियों के खिलाफ करता हूं। इससे राज्य की लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। सुनिए क्या कुछ पीड़िता के पिता ने कहा। किसी का नहीं आया। महिला कमीशन की तरफ से आपके पास फोन आया था? उड़ीसा महिला कमीशन? हाँ आया था, उड़ीसा से आया था। क्या वो लोग भी वो भी आ रहे हैं, सांत्वना भी देते हैं, तो ठीक करो। बच हम रो रहे थे, वो समझ रहे थे, ठीक हो जाएगा। अच्छा, आज और 2 जन को गिरफ्तार किया गया है, टोटल 5 जन को गिरफ्तार किया गया इस केस में। क्या कहेंगे और क्या डिमांड करते हैं, क्या बात रखना चाहते हैं आप राज्य सरकार के पास, बंगाल राज्य सरकार? मेरे को वो जो ममता दीदी है वो भी तो किसी का माँ होगा ना। अगर माँ होगा तो उसका लड़के का दर्द भी समझ सकते हैं ना। मैं चाहता हूँ और बंगाल सरकार के अनुरोध करता हूँ, उसी से कड़ी सजा दीजिए। अगर उससे सजा देंगे तो बंगाल का लड़की थोड़ा सुरक्षित अनुभव करेगा। आपको बता दें, दरअसल दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज की 2nd ईयर की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। पीड़िता उड़ीसा की रहने वाली है और डॉक्टर बनने का सपना लेकर के बंगाल आई थी। वो अपने एक पुरुष मित्र के साथ रात करीब 8 बजे हॉस्टल से बाहर निकली थी खाना खाने के लिए, जिसके बाद उसके साथ इस जघन्य घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन इन सब के बीच में अब ममता सरकार पर यह बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। महिलाओं को लेकर के पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है ये तमाम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी जो है वो राज्य में सुरक्षा सुनिश्चित करने की बजाय उल्टा लड़कियों को लेकर के ही शर्मनाक बयान दे रही हैं और ये कह रही हैं कि आखिर लड़की जो है वो रात में बाहर कैसे निकली। लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए और उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर के सतर्क होना चाहिए। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है, इसको लेकर के तमाम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बीजेपी ने भी बकायदा ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर हल्ला बोला। देखने को मिला था कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बकायदा जो बीजेपी लीडर्स हैं और आम जनता है वो ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर उतरी, जहां पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने यह नारा लगाया कि ममता हटाओ बेटी बचाओ और उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का शासनकाल रहेगा, यहां पर बेटियों को इसी तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि कुछ समय पहले आरजी कर मेडिकल कॉलेज से भी इसी तरीके की घटना सामने आई थी, जिसको लेकर के भी काफी ज्यादा सियासी बवाल शुरू हुआ था और इसको लेकर के बकायदा बीजेपी के साथ साथ आम लोगों ने भी ममता सरकार से कई सारे सवाल पूछे थे, जिसके बाद ममता बनर्जी ने यह आश्वासन दिलाया था कि अब उनके राज्य में इस तरीके की घटना नहीं होगी, क्योंकि वो न सिर्फ आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगी बल्कि ऐसे नियम कानून बनाएंगी जिससे कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं को लेकर के सुरक्षा रखी जाएगी और इस तरीके की घटना नहीं होगी। लेकिन अब खबर सामने आती है कि कैसे दुर्गापुर में एक 23 वर्षीय मेडिकल स्टूडेंट के साथ इस तरीके से जघन्य घटना को अंजाम दिया जाता है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर के ममता बनर्जी के खिलाफ काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है और इस बीच जिस तरीके का ममता बनर्जी का बयान सामने आया है एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते, इसको लेकर के भी जनता में काफी ज्यादा आक्रोश है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।